Alright student, I am continuing from where I had ended. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So now this family, father, mother and that little child, they were nearing the village. So as they were entering the village, the child could see many other footpaths like a whirlpool. They were ending towards the particular spot where the fair was going to be held. And the child was fascinated by the confusion of the world he was entering. Because why confusion of the world is mentioned? Because lots of people he could see entering that busy world of fair. So the child was eagerly waiting to enjoy that particular surrounding, the moment when he would be in that fair. Now what happened? A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. तो जैसे ही ये फैमिली फेयर के एंट्रेंस गेट तक पहुँचे ही थे कि एक स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाला ज़ोर ज़ोर से हॉक करने लगा, चिल्ला चिल्ला के अपने मिठाइयों के बारे में लोगों को बताने लगा कि वो क्या क्या बेच रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। जबकि उसके काउंटर के सामने लॉट्स ऑफ पीपल वे स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ क्राउड, ऑलराइट, एंड दे वे स्टैंडिंग एज इफ एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, जैसे कोई बहुत बड़े मोनूमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े हो। लेकिन वो बिल्डिंग किससे बनी हुई थी? विद मैनी कलर्ड स्वीट्स। The sweets were decorated with leaves of silver and gold, से वो sweets decorated थी. Alright, the child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. So the child was really, you can say, he was amazed to find so many sweets at one particular spot. Especially when he saw burfi, his mouth started watering, like he wanted to have it at once. So he expressed this wish of his to have a burfi to his parents. So he said, I want that burfi. He slowly murmured, but he didn't demand it with a soft voice, he said. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. Because why the child didn't demand for a burfi in a loud voice? Why he said slowly, softly? Because he already knew from beforehand what his parents' answer would be. That his plea, that his request of having a burfi would not be heeded, मतलब would not be noticed. Because उसके parents यही बोलेंगे उस child को that he was being greedy. So without waiting for an answer सुने बगैर वो आगे चलता रहा, मूव करता रहा। फिर वो चाइल्ड किसके पास आके खड़ा हुआ? एक फ्लावर सेलर। उसने क्या देखा कि एक फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर करके चिल्ला चिल्ला के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। सो द चाइल्ड ऑल्सो सीम्ड ड्रॉन टूवर्ड्स इट without stopping himself, his wish. He went towards the basket with the flowers lay heaped and half murmured. तो वो उस बास्केट के पास गया जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स ऑफ गुलमोहर पड़े थे, और वो स्लोली बोला एज अगेन कि आई वॉन्ट दैट garland. He wanted to have that garland. But he knew that his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. बट उस चाइल्ड को पता था कि वापस उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ करेंगे ये कहते हुए कि वो फ्लावर्स चीप है, पुअर क्वालिटी के, इन्फीरियर क्वालिटी के है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर द चाइल्ड अगेन मूव्ड ऑन. So you see the child got attracted by the sweet meat sellers hawking, especially when he saw the burfi lying in front of him. Then again he wished to have a garland of gulmohar. Now the child got attracted when he saw a man standing
holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Alright, now with yellow, red, green and purple balloons flying from it, the child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he knew well his parents would never buy him. Again he knew that his parents would never buy him the balloon because they would say that he was too old to play with such toys. So जब उस बच्चे ने देखा कि एक आदमी एक पोल को पकड़ के खड़ा हुआ है, उस पोल में से बहुत सारे बैलून्स अलग अलग कलर के, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, जैसे कि वो रेनबो, मतलब रेनबो में पाए गए हर कलर्स जो होती है वो सारे कलर्स के बैलून्स उसके सामने सिल्कन फॉर्म में लहराते हुए नज़र आया, तो उसके मन में एक डिज़ायर आई, ओवरवेलमिंग मतलब कोई ऐसी इमोशन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। तो वो एक ऐसे डिज़ायर उसके मन में आया कि वो सारे बैलून्स को वो खरीद ले, पोजेस करे। But again he knew that his parents would not allow him to buy the balloons because वो यही एक्सक्यूज़ देंगे उस बच्चे को कि वो बच्चा अभी बहुत बड़ा हो चुका है टू प्ले विथ सच टॉय, जैसे खिलौने से, इसलिए वो खेलने लायक नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अब वो चाइल्ड वापस आगे बढ़ता गया। फिर उसने क्या देखा? A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो उस बच्चे ने क्या देखा कि एक snake charmer, alright, was standing and he was playing a flute, बांसुरी बजा रहा था, alright। उसकी आवाज़ सुन के जो उसके पास जो बास्केट थी, बास्केट के अंदर एक स्नेक था जो अपने हेड को बाहर निकाल रहा था वेरी ग्रेसफुली, और उसकी हेड जो ग्रेसफुली नॉड हो रही थी इधर से उधर। उस चाइल्ड ने उसके उस हेड को उस मोमेंट में किससे कंपेयर किया? विद द नेक ऑफ अ स्वान। तो जैसे ही उस म्यूज़िक उस स्नेक के इनविजिबल ईयर, जो ईयर बाहर से नहीं दिखाई दे रहे थे स्नेक के, तो जैसे ही वो म्यूज़िक जो वो स्नेक चार्मर बजा रहा था विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूट, उस स्नेक जैसे ही उस म्यूज़िक को सुनता था तो वो अपना हेड नॉड कर रहा था। तो ये जो म्यूज़िक थी उस स्नेक के इनविजिबल ईयर्स पर किस तरीके से पड़ रही थी, किस तरीके से मतलब नरेटर ने सिम्बलाइज़ किया विद द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। जैसे पास में कहीं वाटरफॉल हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन उसकी जो पानी के गिरने की जो आवाज़ है, जो एक सूदिंग इफ़ेक्ट लाती है माइंड को, लाइक अ म्यूज़िक, वैसे म्यूज़िक से कंपेयर किया गया है। So the child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. तो the child went toward the snake charmer, उस चार्मर के पास गया तो था, लेकिन तुरंत उसको याद आया कि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा मना करते थे कोई हार्श कोर्स म्यूज़िक सुनने के लिए, जिससे उसके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए बीइंग एन ओबीडियंट चाइल्ड वो वहाँ पे रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। सो यू सी चिल्ड्रन, सो मेनी थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फिर उस चाइल्ड ने क्या देखा? अभी उन लोग सब कहाँ हैं? मेले में है, मेले की सीन है, चारों तरफ शॉप्स है, वेंडर्स है, ह्यूमैनिटी, लोग भरे हुए हैं, केओस है, नॉइज़ है, और सारे शॉपकीपर्स, वेंडर्स अपने अपने वेयर्स को, अपने अपने सामानों को बेचने के लिए एट द टॉप ऑफ द वॉइस दे आर शाउटिंग। सो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में फुल ऑफ केओस, ऑलराइट, वो चाइल्ड जब अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ ही रहा था, एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ देखते देखते, तो वो चाइल्ड किसके सामने आके खड़ा हुआ? एक राउंड अबाउट। राउंड अबाउट इज़ अ टाइप ऑफ स्विंग जो सर्कल फॉर्म में घूमता है। Men, women, children, they were all sitting in that particular roundabout and they were in a whirling motion. वो घूम रहे थे, घूमते घूमते, स्विंग करते करते वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उनकी हंसी में एक डिजीनेस थी क्योंकि वो गिडी फील कर रहे थे, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। वो चाइल्ड बहुत ही इंटेंटली उनको देखने लगा।
ऑलराइट, एंड देन अब इस उसकी विश को वो रोक नहीं पाया और उसने बोल्डली रिक्वेस्ट किया कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। तो उसने क्या कहा कि वो उस राउंड अबाउट में जाना चाहता है, राउंड अबाउट में बैठना चाहता है। ज़ोर से उसने आवाज़ निकाल के अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। सो यू सी चिल्ड्रन, अभी तक चाइल्ड ने बर्फ़ी की मांग विश की थी, उसके बाद एक गार्लैंड, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स दैट्स वाई, एक गार्लैंड मेड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स की विश की थी। ही वॉन्टेड ऑल्सो टू हैव बलून्स,